آج چھُ سون سبق جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا. تاکید اکثر استعمال کران تمہ یم وز کا انتہائی اہمیت حامل کت بیکس تین واتن. تو اس ٹائم ہم اردو زبان میں یقیناً اور بے شک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عربی اسلوب میں ہم اس حوالے سے ان کا استعمال کرتے ہیں. ان اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں لا. آج جو ہمارا کلاس ہے وہ انا کے حوالے سے ہوگا. انا کا جو لفظی ترجمہ ہے سو بے شک، یقیناً. یہ دو ترجمے انا کے ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ جس کے متعلق آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کے 3 اجزاء ہوا کرتے ہیں. پہلا مبتدا، دوسرا خبر، اور تیسرا متعلقہ خبر. مبتدا کے حوالے سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ ہمیشہ معرفہ ہوگا اور ہمیشہ اسم جملہ اسمیہ کے ابتدا میں ہوگا. اور جب کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ مبتدا کو مؤخر کیا جاتا ہے تو اس کے 2 وجوہات ہوا کرتے ہیں. پہلا، یا تو تاکید مراد ہوتا ہے یا مبتدا کو نکرہ بنانا ہوتا ہے. دوسرا آپ کا خبر ہے. خبر ہمیشہ نکرہ ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا آپ کا متعلقہ خبر ہے. متعلقہ خبر اس کی پہچان آپ جار مجرور سے کرتے ہو. اس میں حروف جار استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ متعلقہ خبر کبھی کبھی قائم مقام خبر بن جاتی ہے. اس کو ہم خبر کے بدلے بھی استعمال کرتے ہیں چونکہ یہ مبتدا کے بعد آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی مقدم بن جاتا ہے. اور مقدم بننے کی 2 ہی صورتیں ہوا کرتی ہے. پہلی صورت تاکید پیدا کرنا اور دوسری صورت مبتدا کو نکرہ لانا. تو یہاں تک آپ کا جو کنسپٹ ہے جملہ اسمیہ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ مستعان کلیئر ہوگا. تو آگے بڑھتے ہیں. اس جملہ اسمیہ میں جس کی ترکیب جو میں نے آپ کے سامنے یہ ساری بیان کی ہے، یہ اجزاء آپ کو بخوبی انشاءاللہ مستعان معلوم ہی ہوں گے. مزید اب ہم اس جملے میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم کسی جملے کو لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جملہ ایک ہے اور وہ جملہ یہ ہے: حامد عالم ہے. پہلے ہم اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد عربی میں سمجھیں گے. حامد عالم ہے. تو یہ کامن سا ایک جملہ ہے ہمارے پاس، حامد عالم ہے. اور اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہوگی؟ آپ کا جو حامد ہے یہ مبتدا ہے اور عالم آپ کی خبر ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کو اگر ہم تاکید کے ساتھ پیش کریں تو اس کو ہم کچھ اس طرح لکھیں گے: بے شک حامد عالم ہے. تو جو ہی میں بے شک کا لفظ استعمال کرتا ہوں آپ بخوبی سمجھ پاتے ہو کہ میں تاکید پیدا کر رہا ہوں جملے میں سٹرس پیدا کر رہا ہوں جملے میں. یہاں پہ میں کامنلی بول رہا ہوں حامد عالم ہے
और यहां पे मैं वजाहतन बोल रहा हूं, शऊरन बोल रहा हूं, हाँ बेशक इसमें कोई दो रहा नहीं है कि वो आलिम है। तो ये आपका उर्दू में कंस्ट्रक्शन है। ये बेशक के लिए जो अरबी में हमारे लिए लफ्ज है वो आपको मालूम ही है, इन्ना है। ठीक है। तो जैसे ही आपको किसी अरबी कंस्ट्रक्शन को, जो जुमले इस्मिया होगी, उसको आप ताकीद, उसमें ताकीद पैदा करना चाहते हो आप, तो उसमें आप इन्ना दाखिल करोगे। अब इन्ना की भी कुछ शराइत है, करता है, लेकिन साथ साथ उसमें कुछ तगय्युर और तबद्दुल चाहिए। जब तक वो तगय्युर और तबद्दुल ना होगा तब तक इन्ना अपना काम नहीं करेगा। तो वो तब्दीलियां क्या है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इन्ना जो ही किसी जुमले इस्मिया पर दाखिल किया जाएगा, सबसे पहली चीज वो मुब्तदा पर असर अंदाज होता है। जो आपका मुब्तदा है उस पर यह अपने असरात मुरतब करता है। और असरात क्या होते हैं? मुब्तदा की जो साख्त है वो बदल जाती है। मुब्तदा आपका अमूमन जो है वो रफा की हालत में होता है। ठीक है। तो जो ही आप इस पर इन्ना दाखिल करोगे, ये रफा से नस्ब में जाएगा, ये रफा से नस्ब में जाएगा। और मुझे यहां पर बोलने की कतअन जरूरत नहीं कि नस्ब किस चीज का नाम है। ठीक है। नस्ब आपको मालूम ही होगा, नस्ब क्या कहते किसे कहते हैं। यानी ये दो जबर वाली शक्ल में जाएगा। ये पहली चीज है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद दूसरी चीज, खबर के हवाले से, खबर पर कोई इन्ना का असर नहीं होता। खबर वैसी ही रहेगी जिस तरह आपने इसको यहां पे लिखा होगा। ये दूसरी बात है, इसको भी आप याद रख लीजिए। और तीसरी बात जो इस इन्ना के हवाले से आपको याद रखनी है वो ये है कि इन्ना के दाखिल करने के बाद जब आप किसी इस्म पर इन्ना दाखिल करते हो तो कोई भी जुमला इस्मिया ना मुब्तदा रहता है ना खबर रहती है। आप इसको मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद ये कायदे मैं आपको बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन आपकी है, जैद आलिम है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास होगी वो ये है, जाइदुन आलिमुन। अब आप इस पर इन्ना दाखिल करना चाहते हो। जो ही इन्ना दाखिल होगा तो जाइदुन से ये जाइदन बन जाएगा। इन्ना जाइदन, और आलिमुन चूंकि खबर है ये वैसी की वैसी रहेगी, आलिमुन। इन्ना जाइदन आलिमन। अब अगर आप इसकी डिस्टिंग्विशन, आप इसकी क्लासिफिकेशन देखोगे, इसमें जो जायदन आपका है यह आपका मुब्तदा है और आलिम जो है वो आपकी खबर है। लेकिन जो ही आप इस पर इन्ना दाखिल करोगे, अब आप इसको मुब्तदा और खबर नहीं कहोगे। अब इसका नाम जो है वो तब्दील हो जाएगा। अब क्या कहा जाएगा? अब इस मुब्तदा को इन्ना का इस्म कहा जाएगा। तो मुब्तदा में तब्दीली पैदा होती है, तो इसको कहा जाएगा इन्ना का इस्म। है ये वही कायदा, लेकिन अब इसका नाम जो है वो तब्दील हो गया। अब इन्ना ने इसको अडॉप्ट कर लिया, और अडॉप्ट जब कर लिया तो इसको कहा जाएगा इन्ना का इस्म, इन्ना का इस्म। और इसको कहा जाएगा इन्ना की खबर। ये कायदा आपको याद रखना है। बड़ा ही आसान कायदा है, इसको आप याद कर लीजिए और इंशाल्लाह मुस्तन आप एक गैर मामूली तब्दीली अपने वोकैब में, अपनी ग्रामर में देखोगे इंशाल्लाह मुस्तन। तो इसको आप इन्ना का इस्म और इसे इन्ना की खबर से मौसूम करोगे आप। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। लड़का
नेक है, या हम डायरेक्टली कर लेंगे आप, बेशक लड़का नेक है। अब बेशक के लिए जो आपके पास लफ्ज है वो इन्ना है, लड़का ये है अल वलदु, और नेक के लिए सालिहुन। इन्ना के दाखिल करने के बाद आपका वलदुन जो है, वलदु जो है वलदा में तब्दील होगा। इन्नल वलद सालिहुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके जो दो लड़के हैं वो नेक होंगे तो क्या बनेगा? बेशक दो लड़के नेक है, तो बेशक की जगह आपका इन्ना आ जाएगा। दो लड़के के जो हमारे पास तर्जुमा है वह है वलादान, लेकिन इन्ना के दाखिल करने के बाद ये वलादानी नहीं वलादाइनी आ जाएगा। इन्नल वलादानी, अब नेक है दोनों, सालिहान। ये क्लियर हो रहा है आपको? बड़ा ही इजी है। एग्जाम्पल्स पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स पर ध्यान दीजिए। दो लड़कियां नेक हैं, अब लड़कियां हैं और दोनों के दोनों नेक हैं, बेशक दोनों लड़कियां नेक हैं। इन्ना, अब दो लड़कियां जो है, बिंतुन बिंतन बिंतिन बिंतानी बिंताइनी बिंताइनी, तो इसका जो आ जाएगा इन्नल बिंताइन, अब वो नेक है, सालिहतानी। ये क्लियर हो रहा है आपको? बड़ा ही इजी है, एग्जाम्पल के जरिए आप इसको समझ सकते हो। एग्जाम्पल्स कीजिए, एग्जाम्पल से इसको समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जाहिद नेक है, अब जाहिद आपका नेक है या बेशक जाहिद नेक है? बेशक जाहिद नेक है, तो क्या आ जाएगा? इन्ना जाहिदन, अब नेक है, सालिहुन। कहीं आप सिफत मौसू के चक्कर में नहीं पढ़ना, जाहिदन के बाद सालिहन नहीं लिखना, तो जाहिदन के बाद सालिहुन ही आएगा। खबर पर ऐसी कोई असरात इस पर मुरतब नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। अब हम जाहिद की जगह वो को इस्तेमाल करते हैं। बेशक वो नेक है, बेशक वो नेक है, तो सबसे पहले आप इन्ना का तर्जुमा कर दीजिए, बेशक का इन्ना, और वो आपका हुआ में आता है, और नेक है सालिहुन। तो हमने कहा था जैसे ही इन्ना दाखिल होता है मुब्तदा पर तो उसकी साख्त तब्दील होती है, तो क्या होता है? वो नस्ब में चला जाता है। और हुआ का तर्जुमा हमारे यहां वो है, लेकिन ये वो रफा में है। जब आप वो नस्ब में लिखना चाहते हो तो आपके लिए लफ्ज़ हु, तो यहां पर इसमें तब्दीली रोनमा होगी और क्या होगा? इन्ना प्लस हु, जिसे हम कहते हैं इन्नाहु, इन्नाहु सालिहुन। ये समझ आया? ये इन्नाहु सालिहुन कैसे आया? बेशक वो नेक है, बेशक वो नेक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जमाइर जो चार्ट है वो मजरूरा के इस्तेमाल होंगे, इसमें मजरूरा के इस्तेमाल होंगे। हाँ, वो दोनों नेक है, वो दोनों नेक है और मुज़क्कर है, वो दोनों नेक है। अब वो दोनों, या बेशक आप लिख लीजिए इसको पहले, बेशक वो दोनों नेक है, तो इन्ना, और वो दोनों के लिए हमारे पास जो लफ्ज है वो हुमा है, नेक है सालिहानी, दो है, इसको याद रख लीजिए, इसमें गलती नहीं कीजिएगा आप, तो इसको ऐड कर लीजिए। इन्ना हुमा
सालिहान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो सब नेक है, मुज़क्कर में है, वो सब नेक है, तो बना लीजिए बेशक। इन्ना, सबके लिए, वो सब के लिए हुम आता है, नेक सालिहून, तो क्या बन जाएगा? इन्ना हुम सालिहून। ये समझ में आ रहा है आपको? बड़ा इजी है, बस प्रैक्टिस और लगन और कंसंट्रेशन, ये तीन चीज अगर आपके पास है, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन बड़े इजी के साथ, बड़े एट ईज कर सकते हो इंशाल्लाह मुस्तान। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। वो सब नेक हैं, ये मोनस में है, बेशक के साथ। हाँ, तो बेशक की जो बेशक का तर्जुमा जो हमारे पास है वो क्या है? वो इन। और वो सब जो हम मोनस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आप चार्ट में देख लीजिए, वो हुन्ना है, वो हुन्ना है प्लस सालिहातुन, तो क्या बन जाएगा? इन्ना हुन्ना, इन्ना हुन्ना सालिहातुन, तो वो सब नेक है। ठीक है, इन्ना हुन्ना सालिहातुन। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मैं नेक हूं, या बेशक मैं नेक हूं, क्योंकि हम इन्ना पढ़ रहे हैं, बेशक मैं नेक हूं, बेशक मैं नेक हूं। तो अगर मैं बेशक के बगैर लिखता तो लिखता मैं अना सालिहुन प्लस इन्ना। ठीक है, लेकिन चूंकि मेरे पास जो नस्ब वाला जमीर है, मेरे के लिए वो या होता है, या मुतकल्लिम, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो इन्ना प्लस या, तो क्या बन जाएगा? इन्ना प्लस या, शाबाश, क्या बन जाएगा? इन्नी। हाँ, जज़ाकल्लाह, दोनों ने अच्छा लिखा। इन्नी, इन्नी सालिहुन। तो इस नून का नाम क्या है? कोई याद है आपको? मैंने कहा था उस नून का नाम क्या है? शाबाश, जहन में कुछ है? इसे नूने विकाया कहते हैं, ये जोड़ता है नूने विकाया। तो यहां पर एक चीज आप याद रख लीजिए, इन्नी सालिहुन, इन्नी सालिहुन, मैं नेक हूं, इन्नी सालिहुन। तो आगे बढ़ते हैं। हम नेक हैं, हम नेक हैं, हम नेक हैं, तो ऐसा आएगा नहनु सालिहुन। अब इस पर इन्ना को दाखिल कर दीजिए आप, अब नहनु की जगह ना आ जाएगा, या और ना, तो क्या बन जाएगा ये? इन्नना। हाँ, इन्नना, इन्नना सालिहुन, इन्नना सालिहुन। जज़ाकल्लाहु खैर, धीरे धीरे आप सीख रहे हो, बहुत ही उम्दा कर रहे हो। इन्नना सालिहुन। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक दो एग्जाम्पल, ताकि क्लियर हो जाए हमें इन्ना। जुमला हमारे पास है, अल्लाह की मदद करीब है, अल्लाह की मदद करीब है। तो अल्लाह की मदद का ट्रांसलेशन आप कर लीजिए। आप अल्लाह की मदद, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है आपका, तो मदद के लिए नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद। अब करीब है, नसरुल्लाह
नसरुल्लाहि करीबुन, यही का तर्जुमा होगा, नसरुल्लाहि करीबुन, नसरुल्लाहि करीबुन। अब आप इस नसरुल्लाह पर इन्ना का दाखिल कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? जैसे आपने इस पर इन्ना दाखिल कर दिया, आप अपने मुब्तदा में एक तब्दीली पाओगे। तो क्या तब्दीली होगी? ये बन जाएगा इन्ना नसरुल्लाह करीब। यह आपकी खबर है, यह आपका मुब्तदा है, जो रफा में था अब ये नस्ब में चला गया। ये गोज क्लियर? इन नसरुल्लाह करीबुन, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। हाँ, और एक हदीस पाक हम यहां पे लिखते हैं, जिसमें एक लोथड़ा, जिसमें एक लोथड़ा, अब ये मुब्तदा खबर है, जिसमें क्या बन जाएगा? फी जसदिन, ठीक है। अब इसको मुआरिफा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? फिल जसद, फिल जसद एक लोथड़ा, मुजगतुन, फिल जसद मुजगतुन। तो इस पर इन्ना दाखिल कर दीजिए और बनाए इसका सेंटेंस आप। अब इस पर इन्ना दाखिल होगा तो क्या बन जाएगा? जब इन्ना दाखिल करेंगे, जल्दी पढ़ लिखिए, फिल जसदी मुजगतुन। अब आपने इस पर इन्ना दाखिल कर दिया, हाँ, तो आपने इस पर क्यों नहीं, ये जसदी को जसदा क्यों नहीं बनाया? आपने आपने मुजगतुन को मुजगतन क्यों बनाया? ये सवाल तो पैदा होगा ना। आपने मुजगतन को ही क्यों पकड़ा? आपने जसद पे क्यों नहीं इसका असर दिखाया? हाँ, यहां पर लाम जारा नहीं, यहां पर जो है, यहां पर फी है, और फी आपका हरूफ जार है, और हरूफ जार जो जहां पे होता है वो कभी मुब्तदा नहीं बनता, ये आपका हमेशा खबर होगी। और हमने यही पढ़ा है कि इन्ना खबर पर कोई असर नहीं करता। तो यहां पर जो है खबर को मुकद्दम कर दिया गया है और मुब्तदा को मुअख्खर कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? मामला यहां पर मुजगतन को नकीरा बनाना था। अब ये चीजें आप समझ रहे हो धीरे धीरे। तो जब इन्ना दाखिल करेंगे तो इन्ना का असर जसद पर नहीं होगा, इन्ना का असर जो है वो मुजगतुन पे होगा। तो क्या बन जाएगा कंस्ट्रक्शन आपकी? इन्ना फिल जसद मुजगतन। क्लियर हो रहा है? ये बड़ा कमाल का असलूब आप सीख रहे हो आज। इससे आपके बहुत से कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह मुस्तान। इससे बहुत से फितने, बहुत से जो आपकी जो आजमाइशें हैं और बहुत से आपके जो सवालात हैं उनका हल आपको इंशाअल्लाह मुस्तान मिल जाएगा। और एक हदीस पाक जो जहन में इस वक्त आ रही है, लिकुल उम्मतिन फितनतुन, लिकुल उम्मतिन फितनतुन, हर एक उम्मत के लिए, लिकुल उम्मतिन, हर एक उम्मत के लिए। तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपके नॉलेज का टेस्ट करूंगा, लेकिन पहले इसको हल करेंगे। लिकुल उम्मतिन फितनतुन, तो इस पर इन्ना का दाखिल कर दीजिए आप, क्या बन जाएगा? शाबाश, जल्दी बंद कर दीजिए। किस पर असर करेगा ये? लिकुल्ली उम्मतिन फितनतुन, फितनतुन पर असर करेगा। यहां पर लिकुल्ली है,
تو یہ جار مجرور آپ کا ہے، جزاک اللہ، ہاں فتنہ تن، ماشاء اللہ. تو یہ فتنہ تن پر اثر کرے گا، تو کیا لکھا جائے گا؟ ان لکل امتن فتنتن، بے شک ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی مبتدا کو مؤخر کر دیا گیا ہے، تو ترجمہ کیا کرو گی آپ؟ لکل امتن، بے شک ہر امت کے لیے فتنتن، ایک فتنہ ہے. ٹھیک ہے، وہ فتنت امتی، اور میری امت کے لیے کیا فتنہ ہے؟ المال، مال میری امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی آزمائش. فتنے سے مراد یہاں پر آزمائش ہے. تو یہ ایگزامپل بھی ہم نے آج حدیث پاک کی جو ہے کر لی ہے. انشاءاللہ مستعان آگے چل کر بھی ہم بہت ساری ایگزامپل حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ مستعان کرتے رہیں گے، کرتے جائیں گے انشاءاللہ مستعان. بس آپ کی کوشش اور آپ کی کاوش کی ضرورت ہے. جتنا آپ اس حوالے سے سیریس بنو گے اور اس کو پریکٹس کرو گے گھر میں، اتنا آپ کے لیے سب کچھ آسان ہوگا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.